ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਤੜਪ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਲ, ਸਮਾਧੀ, ਪਰਮ ਰਸ, ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਤਮਾਮ ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੁੱਖ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜੋ ਸੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਨੰਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਛਾਇਆ ਨੇ। ਮਹਾ ਮਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਛਾਇਆ। ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਸ ਪ੍ਰਭਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਨਿਰਭੈ ਬਣਨ ਦੀ, ਦਿਆਲੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਨ। ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਛਾਇਆ ਦੇ 'ਚ ਪਲਟਾ ਹੈ। ਛਾਇਆ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਰਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹ ਚੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ, ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਔਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ, ਤੇ ਚੜ ਰਿਓ ਕਬੀਰ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ, ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਵੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਤਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ
कबीर ते घाटी दा मार्ग है, पहाड़ी रस्ता है। कबीर दा ज्ञान किसी महान अवतारी पुरुष कोल घट नहीं है, पर कबीर दे पिछे कोई भीड़ नहीं है। कबीर निवाण दा रस्ता नहीं चुनते, ये चढ़ाइयां दा मार्ग है। एक औगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर, एक बिखड़ी घाटी ते मैं चढ़ लेना। कबीर कहते मेरे अगे कोई नहीं कि मेरी ढारस बजे कि मैथों अगे भी कोई जा रहा है, पर मेरे पिछे भी कोई नहीं। पता है उस रस्ते नूं उजड़िया होया रस्ता कहते ने जिस ते कोई चले ना। कहते रस्ता उजड़ गया, क्यों? कोई चलता ही नहीं। पता नहीं दो शब्द बर्दाश्त करोगे कि नहीं। सारे रस्तियां दे उत्ते वसेबे बड़े ने, बड़ियां रौनकां ने, एक धर्म दा मार्ग ही मैनूं उजड़िया होया दिखाई देंदा है। इस वास्ते बेशतर चर्च सुन्ने हो गए ने, उजड़ गए ने। बेशतर मस्जिदां बिल्कुल सुनिया हो गई, सन्नाटा छाया है। और बेशतर गुरुद्वारे खाली। कोई अमृत वेले उमंग ते तरंग लैके आए होवन, इस तरह दुनिया के सारे गुरुद्वारे इस तरीके दे नाल गल नहीं है। इसनों एक महान शायर इंज कहता है, काफिले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नज़र आते हैं। कहता है रब दे मार्ग ते जड़े चले सन कुछ ते पहुँच गए, कुछ रस्ते च ही खप गए। एक कहता हुण ते रस्ता उजड़िया होया दिखाई देंदा, उजड़िया होया। चलिया सी किसी वक्त रविदास, जुतियां गंढण वाले ते जुतियां बनाने वाले मोची थानू सारी दुनिया च मिलणगे। मजाल है इन्हां च कोई रविदास बैठा होवे, नहीं है। कपड़े बुणन वाले ते कपड़ियां नू छिंबण वाले, कपड़ियां नू रंग देण वाले छींबे थानू सारी दुनिया च मिलणगे। पर इस तरह का नामदेव जो कपड़ियां नू रंग चाड़दियां चाड़दियां अपने मन नू भी रंग चाड़ देवे, ते जिहड़ा कपड़े रंगाण लई आवे उन्हों भी रंग देवे। रंगन रांगों सीवन सीवों, राम नाम बिन घरी न जीवों। श्री नामदेव कहते निरा कपड़े में नहीं रंगदा, मन भी रंगदा। और जिहड़े कपड़े रंगाण लई आंदे ने, निरे उन्हां दे कपड़े नहीं रंगदा, उन्हां दे मन भी रंग देंदा। रविदास निरियां जुतियां नहीं गंढदा, इधर जुत्ती गंढी जा रहा है, इतना मन अपना मन प्रभु नाल गंढी जा रहा है। तो जिहड़ा जुत्ती गंढाण लई आ रहा है, कोशिश कर रहा है इहदा मन भी गंढा। ये दो तरह का मोची है। ऐसा चमार अगले की जुत्ती भी गंढ रहा है, अगले का मन भी गंढ रहा है। जुत्ती गंढदियां गंढदियां रब की गल सुनाई जाता है। जुतियां गंढदियां गंढदियां परमात्मा की लगन पैदा हो सके ऐसी गल करी जाता है। कपड़ियां नू रंगदियां रंगदियां दूजियां दे दिल दिमाग नू रंगण की कोशिश कर रहा है नामदेव। सिर्फ ताना पेटा एक करके कबीर कपड़े नहीं बुनदा, बल्कि सुर ते शब्द नू भी एक करता है, जीव ते ब्रह्म नू भी एक करता है। वो ऐसा जुलाहा है। नमाजी ते बड़े ने, पर फरीद जैसा नमाजी लभना बहुत औखा है, बहुत कठिन है। काफले या बढ़ गए या मिट गए, रास्ते सुनसान नज़र आते हैं। इकबाल कहता है चले सन खुदा दे रस्ते ते जो, कुछ ते पहुँच गए, कुछ रस्ते च ही दम तोड़ गए। रस्ते सुनने पे ने, उजड़े हुए ने। इस सदी दे अगर कोई मार्ग उजड़िया है तो सिर्फ धर्म दा। बड़ी रौनक है थिएटरां दे, क्लबां दे, अयाशी दे अड्डियां दे, जुए खानियां दे, मैखानियां दे, बड़ी रौनक।
रास्ते सुनसान नज़र आते हैं। कारण ये रस्ता पहाड़ी रस्ता है, चढ़ाई का रस्ता है, तो हर बंदा चढ़ाइयाँ ते नहीं चढ़ सकता। चाहे शरीर करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है, चाहे सुरत करके चढ़ना होवे तां भी कठिन है। धर्म का मार्ग है सुरत नूं उच्चा करना। छाया दुनियावी सुख ते जमीन ते भी मिल जाएंगे, क्योंकि दरखत की छां जमीन ते उच्चा उठण की लोड़ नहीं। धनवान बनन लई लाजमी नहीं है कि कोई संतोखी भी बने। ਧੀਆਂ पुत्र की प्राप्ति करने लई लाजमी नहीं कि कोई जप तप भी करे। ਧੀਆਂ पुत्र तो पशु पक्षियां दे भी आउंदे ने, औलाद तो उन्हां दी भी आउंदी है। सार कितावली का करता कहंदा है, निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। रब्बी ज्ञान तो बिना मनुख की भुकत है, कुछ भी नहीं। तो खैर मैं अर्ज करा, मनुख के प्राणों के प्यास तो ऐसी है कि ऐसा सुख मिले जिहड़ा दुख दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। ऐसा जीवन मिले जो मौत दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। ऐसा सुहप्पण मिले जो करूपता दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। और ऐसा नफा झोली दे च पवे जो नुकसान दे च ना बदले, उसे नूं आनंद कहते हैं। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। मैं फिर अर्ज करा, सुख पदार्थों तो भी मिल जाता है, आनंद परमात्मा तो मिलेगा। सुख परिवार तो भी मिल सकता है, आनंद निरंकार तो मिलेगा। और आनंद की है, ये जो मनुख के प्राणों की प्यास है, ऐसी जिंदगी मिले जो मौत दे च ना बदले, ऐसी जवानी मिले जो बुढ़ेपे दे च ना बदले, ऐसा सुख मिले जो दुख दे च ना बदले, ऐसी इज्जत मिले जिहदे थल्ले बेइज्जती बिल्कुल ना होवे, ऐसियां खुशियां मिलन जिहदे पिछे गम बिल्कुल ना होवे। बस इसे नूं आनंद कहते हैं। आनंद दे च की है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, नानक बद्धा घर कहाँ जिथे मिरत ना जन्म जरा। जमना नहीं है, मरना नहीं है, बुढ़ेपा नहीं है, इस तरह की तर्जे जिंदगी नहीं है उत्थे। खैर मुख्तसर हुण अर्ज करा, आनंद की प्राप्ति का वसीला जप। ते जप उसनूं कहंदे ने, ये रसना किसी एक शब्द नूं बार बार रटन करे, बार बार वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये मंत्र उतना ही आउंदा है, करीबन करीबन जितनी देर दे असीं श्वास ग्रास लेंदे हैं, बस उतनी इसकी जो है गति है, उतनी च ही अपने आप पूरा हो जाता है। इनू श्वास ग्रास दे पूरा नहीं करना, ये आपे ही पूरा हो जाता है उतने च ही। वाहिगुरु वाहिगुरु। इस्लामी मंत्र भी ऐसा है, अल्लाह हो, इस पूरा हो जाता है। मैं देख रहा, सूफी मुसलमान फकीर ऐसा ही जपते हैं, अल्लाह हो। बिल्कुल गति यही रही है। और सहजे सरलता दे नाल मनुख जितनी देर दे श्वास ग्रास लैंदा है, ये वाहिगुरु वाहिगुरु पूरा हो जाता है। इसनूं रटी जाना है। ये गल वखरी है कि तार्किक बंदा कह देगा ये तो पुनरुक्ति है, ये रेपीटेशन है, एवें बार बार दुहराई जाओ बच्चों की तरह। मैनू एक बड़े सियाणे बंदे ने तो दिल्ली कह भी दिता सी, कहने लगा गैनी जी गुरु ग्रंथ साहब दे रेपीटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहन लगे मैं थोड़ियां दो चार नज़मां पंजाबी दियां उर्दू दियां सुनिया ने किसी को, तो तुसी कवि दिमाग रखते हो तो इतना तो थानू पता होगा कि पुनरुक्ति दोष है, रेपीटेशन साहित्यिक दुनिया दे दोष है। मैं कहा होवेगी दोष, साहित्य ने मन लिया होगा,
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਹਿਣੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪੁਨਰੁਕਤੀ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਨਰੁਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਨਰੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਵਾਸ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਲੈ। ਨਬਜ਼ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਾਂਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਖਾ ਰਹੇ हैं, क्यों पुनरुक्त क्यों कर रहे हैं, ये रिपीट क्यों कर रहे हैं। बार बार पानी पी रहे हैं, बार बार भोजन छक रहे हैं, बार बार श्वास ले रहे हैं, बार बार दिल धड़क रहे हैं, बार बार नब्ज़ चल रही है, पृथ्वी ते बार बार दिन आ रहे हैं, बार बार रात आ रही है। कहने लगा है इतनी पुनरुक्ति है। कहने लगे मैं इस ढंग नाल सोचिया नहीं सी। बार बार हर के गुण गाओ, पातशाह दी बाणी कहती है बार बार रटी जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु, उतने चिर तक करी जा जितने चिर तक तो वाहेगुरु का रूप नहीं हो जाता। दोनों रटन करी जा। भारत देश ते भारत तो बाहर इस्लामी दुनिया जितने गुरमंत्र ने करीबन करीबन उस श्वास ग्रास दे पूरे हो जाते हैं। राम पूरा हो जाता है, ओम पूरा हो जाता है, वाहेगुरु पूरा हो जाता है, अल्लाह हो इसे च पूरा हो जाता है। ये अपने अपने जप करन वालियां दे मंत्र ने। जगत गुरु बाबा कहते भी ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह अल्लाह कहता है। मंत्र ने। भुख ते सारियां दे अंदर इको है, भोजन सारियां दा एक नहीं है। एक कौम का भोजन भी एक नहीं, सारी दुनिया का भोजन तो एक है ही नहीं। खुराक अलग अलग है। जे सिर्फ भारत नूं ही लो तो बंगालियां का खाना कुछ होर है तो करनाटकियां का कुछ होर है, महाराष्ट्रियन कुछ होर ढंग नाल खांदे ने, आंध्रा प्रदेश की खुराक कुछ होर है, तमिल केरला की खुराक अलग है, पहरावे भी अलग ने, गुजरातियां का खाना कुछ होर है, राजस्थानियां का कुछ होर है, पंजाबियां की खुराक कुछ होर है। लेकिन भुख कुछ होर नहीं, भुख सारियां दी इको है। भोजन एक नहीं है, भुख इको है। और खाण का मकसद भी इको ही है कि भुख मिटे, रस आवे भुख मिटे। लेकिन भोजन एक नहीं है। अंदर ते तड़प सारियां दे इको है। प्रभु मिले, परमात्मा मिले, परम आनंद मिले, सुकून मिले, शांति मिले, चैन मिले, आनंद मिले। जिस तरह भोजन एक नहीं है, भजन भी एक नहीं है, अलग अलग है। भोजन कोई वख वख खाया सी नहीं लड़ते कि तू साडे ढंग नाल क्यों नहीं खा रहा, अपने ढंग नाल क्यों खांदा पिया, झगड़ा नहीं है। भोजन दी दुनिया दे आपस दे झगड़ा नहीं है, भजन दी दुनिया झगड़ा है। तू राम राम क्यों आखदा पिया, अल्लाह क्यों नहीं कहता, कि तू अल्लाह क्यों कह रहे हैं, वाहिगुरु क्यों नहीं कहता। ये झगड़े हैं।
और बड़े व्यापक झगड़े ने, बड़े भारी खून खराबे ने। भुख सारियां च इक्को है, भोजन एक नहीं है। परम आनंद की तड़प सारियां च इक्को है, भजन एक नहीं है, अलग अलग है। पर ये अलग अलग भजन का होना उन्होंने लोगों को प्रवान नहीं जिन्होंने कभी भजन का रस आया ही नहीं। जिन्होंने रस आ गया उन्होंने गल कुछ होर हो जाती है। वो तो कह देंगे ने कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है, वो तो इंज कह देता है। और हाफिज कहता है हाफिजा गर वसल ख्वाही सुलह कुन बा खास आम। कहता रब का विसाल चाहना है, रब का मिलाप चाहना है, हर एक नाल सुलह कर ले, हर एक नाल। और हाफिज तो कहते सन उही रब दे नेड़े है जो संसार दे नेड़े है, वही खुदा दे नेड़े है जो मखलूक दे नेड़े है। जो मखलूक तो दूर है खुदा तो भी दूर है, जो बंदियां तो दूर है हो नहीं सकता वो रब दे नेड़े होवे। जिहड़े विचार बंदे नूं बंदे नाल ना मिलन देण, यकीन जानना वो विचार बंदे नूं रब नाल भी नहीं जुड़न देणगे, पक्की गल। जिहड़े विचार मनुख ते मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार मनुख ते खुदा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते परमात्मा दे विचकार भी दीवार समझ लेने चाहिए ने। मनुख ते मैं समझदा सदियां तो अनंत काल तो दीवारां ही खड़ी करी जा रहा, नवीआं तो नवीआं, पुरानियां टुटदियां नहीं पियां, नवीआं होर खड़ियां हो रही। पुराने मसले हल नहीं होंदे, नवे होर। बंदा बंदे तो दूर होंदा गया, बहुत दूर। भावें साइंस बड़ी नेड़े ले आई है, अज कोई दूरी जमीन की दूरी तो नहीं रही, पर बंदा बंदे तो बहुत दूर हो गया, मनुख मनुख तो बहुत दूर है। पाकिस्तान तो पड़ोस दे च है, हिंदुस्तान तो बहुत दूर है, बड़ा दूर है। जमीन के तल ते नहीं, हिरदे के तल ते बड़ियां दीवारां खड़ियां ने, बड़ियां दीवारां खड़ियां ने। मिलना ही औखा है। तो पाकिस्तान की तो गल छड्डो, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू ते मुसलमान बहुत दूर ने, बहुत दूर ने, बड़ी भयंकर दूरी है। राम ते खुदा दी बहुत वड्डी दूरी है। भावें दूरी नहीं है पर मनुख ने कर दी है। राम खुदा दे नेड़े नहीं है, खुदा राम दे नेड़े नहीं है। इस वास्ते सारे हिंदू समाज का जोर सी मस्जिद गिरा दईए, इत्थे खुदा दी गूंज आउंदी है। और सारे मुसलमानों की कोशिश से मस्जिद नूं बचाईए। या किसी वक्त बाबर ने मंदिर गिराया, बाबर को ताकत आई, उसने मंदिर गिरा के मस्जिद खड़ी की थी। अजोके सत्ताधारियों को सत्ता आई, इन्होंने मस्जिद गिरा के मंदिर खड़ा कर दिता। एक ने मंदिर गिराया, एक ने मस्जिद गिराई, ये सामने है। जद मंदिर गिरिया सी, हज़ारां हिंदू ज़ारो ज़ार रोए सन। जद मस्जिद गिरी सी, तड़पे सन मुसलमान इस तरह जिमें जल तो बिना मछली तड़पदी है। तो बड़ी अफरा तफरी मची सी। साबका उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल हरियाणे तो, इसने पार्लियामेंट दे आवाज़ उठाई, मसला हल हो सकता है, इनू गुरुद्वारा बना दो। राम की धुन भी गूंजती रहेगी, अल्लाह भी गूंजता रहेगा। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करते हो कि उन्हें पार्लियामेंट के बोल बोले सन, अखबार छपे सन, इसनों गुरुद्वारा बना दो। मस्जिद ढाण की लोड़ नहीं पैगी, मंदिर नाल नफरत नहीं होएगी, क्योंकि अल्लाह की धुन भी गूंजती रहेगी, राम की धुनी भी गूंजती रहेगी। पर हर एक को इतनी अकल थोड़ी होंदी है, हर एक को इतनी सियाणप थोड़ी होंदी है। सता की ताकत विच बाबर आया, उन्हें मंदिर गिरा दिता। सता की ताकत विच अजोके आए, इन्होंने मस्जिद गिरा दी। जद मंदिर गिरिया सी, हिंदू ज़ारो ज़ार रोया सी। जद मस्जिद गिरी, मुसलमान ज़ारो ज़ार रोया।
तड़पे। मस्जिद दीवार बन गई, मंदिर दीवार बन गए, बंदे बंदे का मिलना औखा। और जो मस्जिद दीवार बन जाए, यकीन जानो खुदा का घर नहीं है। जो मंदिर दीवार बन जाए, औखे ना होना भगवान का घर नहीं है। और जिहड़ा गुरुद्वारा दीवार बन जाए, सिख का सिख नाल मिलना ही औखा हो जाए। लोगों ने वंडे हुए ने। मैं तो देख के दंग रह गया। इधर मलेशिया सिंगापुर के मलवईयां का गुरुद्वारा है, ये दुआबियां का है, ये जट्टां का है, ये मजहबियां का है, ये रामगढ़ियां का है। गुरु का गुरुद्वारा केड़ा है, गुरु का द्वार केड़ा है? कोई रामगढ़ियां का, कोई जट्टां का, कोई मलवईयां का, कोई दुआबियां का। और एक गुरुद्वारे का नाम उन्होंने रखे है पापियां का गुरुद्वारा। मलेशिया के सिंगापुर के ये पापियां का गुरुद्वारा है। फिर गुरु का दर केड़ा होया? कोई पापियां का हो गया, कोई जट्टां का हो गया, कोई मलवईयां का हो गया, कोई दुआबियां का हो गया, कोई रामगढ़ियां का हो गया। और हैरानगी की गल, इंग्लैंड के मजहबियां का भी बन गया, मजहबियां का है। और सिंगापुर भी है, ये मजहबियां का गुरुद्वारा। फिर गुरु का द्वार केड़ा होया? मैं अर्ज करा, जिहड़ा गुरुद्वारा भी बंदे ते बंदे दे विचकार दीवार बन जाए, वो किसी बंदे का घर हो सकता है, ठीक है, रामगढ़ियां का हो सकता है, जट्टां का हो सकता है, पापियां का हो सकता है, दुआबियां का हो सकता है, मलवईयां का हो सकता है, गुरु का नहीं। गुरु का द्वार तो सारिया दीवारां नूं तोड़दा है, वो तो सारी दुनिया की दीवारां नूं तोड़दा है। और गुरुद्वारे कोई दीवार खड़ी कर दे, उसकी खड़ी की होगी, गुरु ने नहीं खड़ी की। इतनी मैरज करते हैं। ये गल वक्री, इस तो अगे मैं कहां पता नहीं शब्द तुहानूं हजम होंदे ने कि नहीं, पर इतनी गल तो स्पष्ट है कि जिहड़े विचार मनुख दे विचकार दीवार खड़ी कर देन, वो विचार परमात्मा नाल भी नहीं जुड़न देंगे, वो परमात्मा के नेड़े भी नहीं होने देंगे। हाफिज मुसलमान है, ये कहता है, हाफिजा अगर वसल ख्वाही सुला कुन बा खासो आम बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह बा हनूदा राम राम। कहता मुसलमान मिले तेनों अल्लाह कर दें, हिंदू मिले राम राम कर दें। मुसलमान फकीर मुसलमान है, कहता मैनू राम आखण दे कोई इतराज़ नहीं, मैनू अल्लाह कहण दे कोई संकोच नहीं। एक बंदा इडली डोसा खा रहा है, तमिलनाडु करनाटकी लोग, केरला के लोग, उन्हों का खाना यही है। तो कोई पंजाबी लड़ पवे की खा रहे हैं, ये कोई खुराक आती है? पर यकीन जानो, आलूआं का पराठा तुसी खाओ तो तमिल लोग भी औखे हो जाते, की खा रहे हैं, ये खांदा की पे तो वो भी अपने ढंग नाल औखे, उन्होंने अपनी खुराक। भोजन वख वख हो सकता है, भुख वख वख नहीं है, मंत्र अलग अलग हो सकते हैं, भजन अलग अलग हो सकता है। यही गुरु नानक का सिद्धांतिक नुकता है। जब भरतरी ने कहा कि मैं आई पंथ का जोगी हाँ और मैं जोगियां दे 12 पंथ मनदा, गुरु नानक कहने लगे मैं भी आई पंथ का जोगी हाँ, मैं दुनिया के सारे पंथ मनदा, तू सिर्फ 12 मनदा, आप सारे ही मनदे हैं। आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जी। सगल जमाती जितनियां दुनिया के जमातां ने परमात्मा के मार्ग ते चलण वालियां, आपां सारियां दे नाल हां, सारे साडे नाल ने। गुरु नानक सगली जोत हमारी समया नाना वरन अनेकं, कह नानक सुन भरतर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। ये जितने वरन ने, जितने भेख ने, जितने मजहब ने, जितनियां जमातां ने, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मेरा अपना ही रूप ने, वो मेरा रूप ने, मैं इन्हां दा रूप हाँ, कोई फर्क नहीं। गुरु नानक हर दीवार नूं तोड़ देने। ये दुनिया का ऐसा जो है सिद्धांतिक नुकता धर्म का सी, जिहदी लपेट दे सारे आ सकते सन। बदकिस्मती है, ऐसे ऐसे औखे तरीके करी जा रहे हैं, अमृत भी इतना बिखम करी जाते हैं, हर एक छक ही ना सके। अपनी अपनी मर्यादा, अपनी अपनी गल्लां, अपनी अपनी तंग दिलियां इन्नी जोड़ी जाते हैं, दूजा भोजन छक ही ना सके, भुखा ही मरे।
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਤਨੀ ਦਫਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੰਗੀ ਗਈ ਜਿਤਨੀ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 60 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਰ ਦੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾੜੋ ਫਾਂਸੀ ਤੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਿਰਵੈਰ ਜਜ਼ਬੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਰਭੈਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਧਰਮ, ਕਹਿ ਦੋ ਆਨੰਦ, ਕਹਿ ਦੋ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ? ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋਗੇ? ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ, ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਮੰਦਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਬੀਰ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਤੇ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਦੋਏ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ। ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲਣਗੇ? ਕਬੀਰ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਮੰਦਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਰਲੇ ਨੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਲੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਨਗਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੇ ਮੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਰਲੇ ਮੰਦਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਰਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਧਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੀ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਿਰਲਾ ਮੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਿਰਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਵਦਾ ਜਾਗਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਰਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਨਸਾਫ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਔਗਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰੇ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਣ ਹੈ। पुरुष है, जीत गया है तो भगवान हो गया है।
हार गया तो शैतान। ये तो जित हार देते खड़ी है, दुनिया जेतू के पिछे चल रही है। ये नहीं देखती कि ये जो जित रहा है कौन है, इसको नहीं देखती। जित गया है इस वास्ते भगवान है। राम जित गए सन, रावण हार गए सन। अगर देखा जाए इंसाफ की कसौटी नाल देखोगे, इन्ना कसूर रावण का नहीं है, राम दे भरा दा ही है। उस जमाने च स्वयंवर की प्रथा आम सी, वर चुनना स्वयंवर। कोई लड़की लड़के के गल दे माला पा देंदी सी, इनू कहते सन स्वयंवर, खुद वर चुन लिया। ये समाज ने खुल दी हुई जिस प्रतिष्ठित जड़ियाँ इस्त्रियाँ इतिहास दे बनिया हुई ने, स्वयंवर होया वैसे सारियां दा सी। एक प्रथा सी जो बाद दे खत्म की गई। इस वास्ते खत्म की गई कि अक्सर लड़की जज्बे के तहत, भावनावां के तहत चोण कर लेंदी सी, रिश्ता निभदा नहीं सी। अगे नौबत तलाक तक पहुँचती सी, बच्चे रुलते सन। समाज अगे आ गया, स्वयंवर की प्रथा खत्म करनी पई। धार्मिक मुखी अगे आ गए, उन्होंने स्वयंवर की प्रथा को खत्म किया। तो ये स्वरूप नखा वरमाला लक्ष्मण के गल दे पाण लगी है। लक्ष्मण कहता नहीं, मैं ता जिंदगी कुआरा रहने का प्रण किया है और मैं अपने भरा दे नाल रहना है। तू मेरे भरा नाल गल कर ले। दा मतलब है दूजी तीजी शादी की प्रथा सी उस जमाने च, क्योंकि राम दे नाल ते सीता सी। फिर भी लक्ष्मण कहता है मेरे भरा नाल गल कर ले। ये इतिहासक पहलू ने, ये इतिहास है। राम दे पिता दी 4 पत्नियां सन, दशरथ दी ये प्रथा सी। तो मेरे भरा नाल गल कर ले। दोवें सुनखे सन, दोवां दा रंग रूप महान सी, दोवां दा तन प्रभावित करता सी। दोवें सुशील सन, दोवें गुणवान सन और दोवें ऋषि विशिष्ट तो धर्म की शिक्षा पढ़े हुए सन। राम कोल चली गई। राम ने भेजा नहीं, मेरे नाल मेरी पत्नी है तो मेरे भरा नाल गल कर ले। गुस्से च आके लक्ष्मण ने नक कट दी। हुण किसी स्त्री की नक कट देनी, ये तो सारी जिंदगी लिए उसनों मुथाज कर देना है, करूप कर देना है। ये पहल लक्ष्मण तो हुई है, रावण तो नहीं हुई। किसी आम साधारण मनुख के भैन दे नाल इस तरह का व्यवहार होवे, शायद वह भी बदले की भावना च आ जाएगा। पर वो तो राजे की भैन सी, रावण की, लंकेश की, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा ताकतवर। महाराज की बाणी कहती है, चंद सूरज जाके तपत रसोई। अज सूरज दियां किरणां नाल चुल्हे जलन लगे ने, पर रावण के जमाने च उदों इस तरह सी। चंद सूरज जाके तपत रसोई, रसोई के चुल्हे जलते सन सूरज दियां किरणां नाल, लकड़ां नहीं बलदियां सन। पता नहीं किस ढंग नाल उसने चुल्हे बनाए। उस जमाने सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, सूरज की अग्नि तो कम लिया इस रावण ने। इसका मतलब है लंका इतनी उन्नत सी, रावण इतना अगे वध गया सी। और उसने महल के उत्ते सोना चाड़िया होया सी, कहते सोने की लंका। शिव जी का उपासक सी पक्का। चारे वेद उसनों जबानी कंठ सन, और बिना मन की इकाग्रता तो कंठ नहीं हो सकते। कई लोग मेरे को पूछते हैं, ज्ञानी जी कोई खुराक ऐसी हो जिहदे नाल बाणी कंठ होवे? मैं कोई खुराक नहीं है, मन की इकाग्रता नाल कंठ होंदी है, किसी खुराक नाल नहीं होंदी। हो सकता है कोई डॉक्टर मेरे नाल सहमत होवे, भावें ना होवे, वो गल वखरी। यादाश्त शक्ति का ताल्लुक मन की इकाग्रता नाल है, किसी भी खुराक नाल नहीं है। ये भी महर्ज कर मन की इकाग्रता नाल है। सारी जिंदगी जाप साहब पे पढ़ते हैं, बुढ़े हो गए, जबानी कंठ कोई नहीं है। उन्होंने चारें वेद जबानी कंठ सन, जबानी पाठ करता सी रावण। इसका मतलब बिना मन की इकाग्रता तो यह नहीं हो सकता, उसका मन एकाग्र सी। शिव जी का उपासक सी और मामूली उपासक नहीं सी। एक दिन उसने कह दिता, ऐ भगवन, इस सिर दे ते आशीर्वाद का हाथ रखो, नहीं तो इस शीश की मैनू लोड़ नहीं है। शीश कट के अगों रख दिता है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 सिरां की मंग की है,
और जैसे मंग की अद्धे तो उंज भज गए सन भी ये गुरु नूं की हो गया। अद्धियां दे अद्धे माता जी कोल चले गए भी लाल जी नूं की हो गया, सिर मंगण लग पैन बंदियां दे। और ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ बैठे हुए सन सहमे हुए सन ये तो खुशकिस्मती पंज तैयार हो गए वारी वारी। पर सतगुर ने मंग की है तां शिव जी ने मंग नहीं की थी। राम शीस भेट जो है रावण शीस भेट करता है, हद हो गई। इन्ना प्यार शिव जी नाल, इतना कुर्बान जा रहा है वो शिव जी तो, इतना सदके जा रहा है और इतनी उसकी भक्ति। शीस कट के अगों रखता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उसके इस त्याग नूं, इस बलिदान नूं अपनियां दो पंक्तियां दे बयान करते हैं। चौबोले महला पंजवा। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। ऐ धन संपदा दे मालिक जे प्रेम दा सौदा आशीर्वाद दा सौदा माया दी दमड़ियां नाल आउंदा तो रावण कोई भिखारी नहीं सी, राजा सी। अथाह सोना रख के आशीर्वाद ले सकता सी पर उसने शीस भेंट किया है। सम्मन जो इस प्रेम की, चौबोले मल्ला पंजवा। ये बाणी है, उस बाणी का नाम है चौबोले। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। रावण कोई भिखारी नहीं सी, उन्हें अपना शीस कट के अगों रखे। उन्होंने पता सी कि रब्बी पुरुषों का आशीर्वाद माया की दमड़ियां नाल नहीं मिलता। तो जे माया की दमड़ियां नाल जो आशीर्वाद दे देंदा है ਉਹਦੇ आशीर्वाद की भी उतनी ही कीमत है जितनी उस माया की, इस तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं वो आशीर्वाद उतना ही है जितनी माया है, बाकी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सम्मन जो इस प्रेम की दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने जिन सिर दीने काट। हुण शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त, चार वेद जबानी कंठ ने, महाशक्तिशाली है, बड़ा ताकतवर है। हारिया क्यों? हार दा की कारण? कहते हैं भिरा बागी हो गया। भिरा ने सारे भेद दस दिते राम नूं, विभीषण ने। भिरा बागी हो गया, भिरा गद्दार हो गया। जद भी कोई कौम हारदी है भरावां करके हारदी है, जद भी कोई देश हारदा है यकीन जानो अपने करके हारदा है। अक्सर सारी दुनिया के इतिहास पढ़ के देख लेना, कोई ना कोई अपने विचों रस्ता दस देंदा है, इंज हो जाता है। हिंदुस्तान दे एक कहावत मशहूर हो गई, घर का बेदी लंका डाले। सारी लंका तबाह हो गई सिर्फ विभीषण करके। रावण हार जाए सवाल ही नहीं पैदा होता। सारे राज दस दिते विभीषण ने राम नूं, इंज जित सकदा है तो हो गई जित। मूर्छत होकर रावण गिरे है, सैकड़े बाण उसनों शरीर दे लगे ने, खून वग रहा है। कहते राम दे मुँह आह निकल गई जैसे पश्चाताप। और पता उसने लक्ष्मण नूं की आख्या, लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख उसनों असीं जमीन ते गिरा दिता है। मैं थोड़े सामने इतिहास के पन्ने पे रखदा, ऐ लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख असीं जमीन ते गिरा दिता है। और इस दे आखिरी प्राण निकलन, ऐ लक्ष्मण तू जा इस दे कोल कोई कीमती ज्ञान की गल सिख लै। मैं ना 10-15 साल देखे ने सिखा ने पता नहीं कितने गिरा दिते मनुख, जिन्हां कोल दिल दिमाग सी, जिन्हां कोल सोच शक्ति सी। किसी ते इल्ज़ाम ला के गिरा दो, किसी नूंज गिरा दो। गिराना तो आसान है। एक दरख्त नूं पैदा करने दे फुल फल तक अपनाने दे 35-40 साल लग जाते हैं, उन्होंने कटद्या कितनी देर लगती है। गंडेंदियां 6 माह, तुणेंदियां 1 खिना। राम कहते हैं लक्ष्मण एक बहुत कीमती मनुख जमीन ते गिर गया है।
और ये वाकई खाक दे खाक हो जाए, इस तो पहले ये तन दे जो चानना है, जो प्रकाश है, जो नूर है, जा तू भज के जा ये को लै। हुण जिस नाल इतना वड्डा युद्ध होया होवे और रावण की पवित्रता के उत्ते एक भी धब्बा नहीं है, सीता नूं उसने सिर्फ कैद रखे है, अपने महलों के कैद नहीं रखा, अशोक वाटिका दे अपने महलों तो बहुत दूर बाहर। ये उसके उच्चे इखलाक की निशानी है, इसके ब्राह्मण होने की निशानी। चुक के क्यों ले आया? उन्हें ऐलानिया कहा सी, ये मेरी भैन की नक नहीं कट्टी, मेरी नक कट्टी गई है, तो मैं हुण राम की नक कटांगा। किसी की पत्नी चुक के लिया अगले की नक कटनी, और की इस तरह की गल। और लाला दौलत राय कहता है, इस बहुत वड्डी जंग भयंकर युद्ध का कारण दो इस्त्रियां ने, एक स्वरूप नखा एक सीता, इन्होंने दोवां एक पासे करते युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। राम को कोई लोड़ नहीं सी रावण नाल लड़न की, ते रावण कोई दुष्ट नहीं सी, इस वास्ते दुष्ट हो गया, वो सीता को चुक ले गया। पर कोई ये नहीं कहता लक्ष्मण ने की किया, एक इस्त्री की नक कट्टी, क्या वो इस इल्ज़ाम दे नहीं आउंदा जिहड़ा इल्ज़ाम रावण ते लाया जा रहा है? पर वो तो जित गया, जितया भगवान हो जाता, हारिया शैतान हो जाता है, और की ये तो साफ है, जितया भगवान हो जाता है, हारिया शैतान हो जाता है। और जिते होए दे नाल कलम दे धनी तुलसी जैसे, कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी चल पैंदे ने, हारे होए दे नाल कोई नहीं चलता। हारे को हरि नाम। यकीन जानो, जब जिंदगी के हर पहलू च हार जाओगे ना तुसी, कोई भी व्यक्ति चिराग लैके भी दोस्त लभोगे नहीं मिलणगे, और जे जित रहे हो तो दोस्तों की लोड़ भी नहीं होगी, तो भीड़ होगी। ये भी मैं अर्ज कर दें, बहुत सुंदर वाक ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, भी तू कहना है फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी गलत कह रहे हैं। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना कोई, सब सुख दे साथी। जिस दिन तेरे को दुख होवेगा, तू चिराग लैके भी साथी लभेगा, तेनों नहीं लभने, नहीं मिलणगे। दरबारे अकबरी दे 9 रत्नां दे चुक रतन जनाब कवि रहीम कहंदा, रहमन विपता हूँ भली, कहंदा विपता चंगी है, दुख चंगा है। रहमन विपता हूँ भली, जो थोड़े दिन होए। विपता भी चंगी है, 2-4 दिनों लई आनी चाहिए, महीने 2 महीने लई आनी चाहिए। ये मामूली पद्धर का मनुख नहीं है रहीम। आम कवियां दे तुकबंदी कवि नहीं है, 2 तुक्कां मिला दित्तियां ते कवि बन गए, इस तरह का कवि नहीं है। उसकी जिंदगी का अनुभव है, उसकी जिंदगी की साधना है, उसकी गहरी तपस्या है। सियाणा ते सी, भजनीक सी, और बहुत वड्डा दानी है। कहते ने जद अकबर नूं ये अवतार मनण तो इनकारी होया, तो अकबर ते चलाना कर गया। जहांगीर का जमाना आया, जहांगीर ने रहीम नूं जेल दे पा दिता, इसका घर घाट तबाह कर दिता, इसकी सारी जायदाद खो ली, जो कुछ भी इसके कोल सी खो लिया। एक तो यह ख्याल सी कि इसने मेरे पिता की तोहीन की है, अकबर दी। उसने जो दीन इलाही चलाया इसने नहीं मनिया, ये इनकारी हो गया। ये कहता सी नहीं, तुसी पैगंबर नहीं हो, राजे हो, बादशाह हो, बादशाह करके मैं सलाम कर सकता, पैगंबर करके नहीं। इसने मेरे प्यो की तोहीन की थी। दूसरा, सांझे ख्यालों का बंदा है, पठान होंदे होया शेरो शायरी करता है संस्कृत दे ब्रिज भाषा दे, परशियन दे नहीं, अरबी दे नहीं, उर्दू दे नहीं। ये तो जो कुछ कहता है संस्कृत दे कहता है, ब्रिज दे कहता है। उन अफगानी पठान सी, काबल का सी। सांझे ख्यालों करके घिरना हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। सूफी फकीरां की मदाखलत दे नाल इनू रिहाई तो मिली, पर 3 कपड़ियां कुछ भी नहीं सी। और जब बाहर निकले कुछ लोड़वंदा ने घेर लिया, दोस्त सन पुराने। पता है रहीम ने की आख्या,
या रहीम दर दर फिरे मांग मधुकरी खाए, यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, और मैं कुछ दे नहीं सकता, मेरे हथ ते खुद मंगते पे ने। जो मेरे को लैण की इच्छा नूं मुख रख के मेरे दोस्त बने हुए सन, मैं हथ जोड़ के कहना मेरी दोस्ती छोड़ दो, यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वो ना है। मैं वो नहीं हाँ, हुण मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं इन्हां हत्थां नाल कुछ भी नहीं दे सकता। इंज जद हथ कीते ते उंगल दे अंगूठी पहनी हुई सी। एक साधु बोल पिया, रहीम जद नदी दे पानी सुक जाता है तो लोग खूह खड़ के भी तो पानी कढ़ लेंदे ने। इशारा समझ गया रहीम। एक अंगूठी पहनी हुई सी, कहने लगे खूह दे तय पानी है लै। इस तरह का दानी बंदा, कोल कुछ भी नहीं, खूह दे ते पानी है लै। वो अंगूठी भी दे दी, मधुखड़ी मंगता रहा। इस तरह उसने अपनी जो है जिंदगी बतीत की थी। और इसने क्या है, हज़ारां दी भीड़ जो मेरे कोल आउंदी सी, मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंधी, अज चिराग लैके भी नहीं लभदे। तो इसके मूँह ये बोल निकले ने, रहमन विपता हूँ भली जो थोरे दिन होए, हित अनहित सब जगत में जान परत सब कोए। कहंदा विपता चंगी है बशरते थोड़े दिनां लई आवे, उदों पता चल जाता है अपना कौन है तो पराया कौन है, पता चल जाता है दोस्त कौन है तो दुश्मन कौन है। और उदों ही पता चल जाता है परमात्मा तो बिना होर कोई संगी बनन नूं तैयार नहीं, ईश्वर तो बिना होर कोई साथी बनन नूं तैयार नहीं। वही साथी है, वही रहिंदा है। इस वास्ते ही शायद उसनूं आख्या गया है बेआसरियां दा आसरा। जब सारे ही आसरे टुट जाते हैं तो फिर एक आसरा ही है। इस वास्ते सियाणे कहते हैं पहले तो ही उसका आसरा पकड़, ताकि जिंदगी च कदी बेआसरा होवे ही ना। उसकी टेक पकड़, उसका जो है आसरा पकड़। तो मैं अर्ज करा हार गया रावण। कौन साथ दे? कलम दे धनी, दिमाग दे धनी, जबान दे धनी, सोचण वाले, दार्शनिक, फिलासफर, चिंतक, कवि सब हट गए। किसी ने इसके हक च नहीं लिखा दुष्ट है, शैतान है। पर सोचना चाहिए इसने क्यों किया। इसकी भैन की भी तो नक कट्टी है, तो नक कट्टण वाला कौन है? अगर सीता को चुक के लियाण वाला शैतान है तो नक कट्टण वाला कौन है? और वह भी किसी स्त्री की अबला दी, और वह भी कोई बहुत बड़ा कसूर नहीं, कोई कसूर नहीं। उस जमाने की प्रथा सी, उस जमाने का रिवाज सी स्वयंवर का। वो तो वरमाला पहनाण लगी, उसकी नक कट ली। ये तो बहुत बड़ा द्रोह है, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। पर नहीं आखांगे जालिम, क्योंकि जित गए ने। जो जित जाए वो भगवान हो जाता है, जो हार जाए वो शैतान हो जाता है। एक सही है। जेड़े गुण राम दे च ने उतने गुण रावण दे च भी ने। धार्मिक है राम, धार्मिक है रावण। विशिष्ट कुल पढ़े ने राम, पाठी ने अच्छे, नाम जपण वाले ने, रसिक ने, ईश्वर नूं मनण वाले ने। पर यह भी नास्तिक नहीं है, शिव जी का उपासक है। चारें वेद उसनूं जबानी कंठ ने। धार्मिक तौर पर दोहां का कोई मतभेद भी नहीं, घरेलू झगड़ा है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। दो स्त्रियां ने एक पासे करते हुए जंग नहीं होनी सी, लाला दौलत राय ने ऐसा ही लिखे है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, राम कहते ने ए लक्ष्मण बड़ा कीमती मनुख जा रहा है, गिर गया है। असी जिस इंसान को जमीन पर गिराया है ये मामूली पद्धर का नहीं है, बहुत महान इंसान है। जा इसके प्राण निकलन इस तो पहले इसकी कुछ महानता अपनी झोली च पा ले, तू भज के जा। लक्ष्मण गया। राम जिथे निर्माणता की मूर्ति सन, हलेम सन, उत्थे लक्ष्मण की तबीयत बिल्कुल इस तो उल्ट सी, बिल्कुल राम तो उल्ट। वो जिथे शांतमई सन, बिल्कुल क्रोधी सुभाव है। वो जिथे दूरदृष्ट सन, इतनी गल लक्ष्मण दे च नहीं सी। ये भी मैं अर्ज कर दिया। सिर दे भार खड़े हो गए तो कहने लगे ब्राह्मण देवता सुने, थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है।
कोई कीमती गल साड़ी झोली च भी पाओ जो साड़ी जिंदगी च कम आवे। अखां खोलियां ने इस तड़पदे हुए रावण ने, और इंज मुस्कुराया है जिवें किसी बच्चे ते किसी नादान ते। अखां मीट लईयां, तड़प रहा सी बेचारा, प्राण निकल रहे सन, नहीं कुछ बोलिया। लक्ष्मण वापस आ गया, कहता भगवान वो तो बोलता ही नहीं, तो जब बोलता ही नहीं उहदे कोल की ज्ञान लईए। राम कहते हैं पुरखा तेरे कोल वो वसफ नहीं है ज्ञान लैण दा। जिस दे कोल ज्ञान लईदा है ਉਹਦੇ सिर दे बाहर नहीं खड़े होईदा, जा उसके कदमां दे खड़ा हो ते हथ जोड़ के ज्ञान की मंग कर। हुण जिस दे कदमां दे राम अपने भरा नूं खड़ा करना चाहते हैं, यकीन जानो मनुख कोई मामूली पद्धर का नहीं हो सकता, बड़ा कीमती मनुख, वक़्त का कीमती इंसान है। कदमां दे खड़ा होया लक्ष्मण और कहंदा हथ जोड़ के, ऐ ब्राह्मण देवता, जो जिंदगी का कीमती अनुभव है इस आखिरी समय साड़ी झोली च पाओ। रावण के नेत्र खुले ने बोले, ऐ लक्ष्मण, हुण तैनू लैण दी ढंग आया है, हुण तैनू प्राप्त करन दा ढंग आया है। सुन, मनुख की जिंदगी दे कल कतई नहीं आउंदा। जो जरूरी काम होवे उसनू हमेशा ही अज कर लेना चाहिए है, मुलतवी नहीं करना चाहिए, कल ते नहीं सुटना चाहिए, पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, उन्होंने मुलतवी नहीं करना चाहिए, अज ही करना चाहिए। जैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते, न बिलंब धर्मं बिलंब पापं। जो किसी जरूरी काम नूं कल ते सुट रहा है, वो जरूरी काम हो ही नहीं सकेगा, रह जाएगा। मनुख बहुत कुछ जरूरी कल ते सुटदा पे, इस तो ही पता चलता है कि बंदा खुद गैर जरूरी हो गया, कुछ भी नहीं है। ये अमृत छकण नूं कल ते सुटदा है, कि शराब पीण अज ही पीनी है, हुण ही पीनी है। ये सच बोलन नूं कल ते सुटदा है, झूठ बोलना है अज ही बोलना है, हुणे ही बोलना है। ये किसी ते दया करन नूं कल ते सुटदा है, कठोरता नाल पेश आना है, अज ही आना है, हुणे ही आना है। मनुख अक्सर जब चंगियाइयां नूं कल ते सुट देंदा है, उसकी जिंदगी च कभी चंगियाई फलीभूत भी नहीं हो सकती, नेकियां फलीभूत भी नहीं हो सकदियां। इतना कीमती ज्ञान है मरदे होया भी दे रहा है रावण। हिंदुस्तानियों के अचेतन मन दे एहसास है, जद भी साल दे साल रावण नूं जलांदे ने ना, उस तो पहले वो जिहड़ा स्वरूप बना के लियाते ना राम ते लक्ष्मण का, वो रावण की परिक्रमा करता है। शायद थोड़े च किसी ने देखा हो, पहले परिक्रमा करते हैं, सजदा करते हैं, और सारा दिन भी हिंदू लोग मत्था टेकते हैं। भाई हद हो गई, एक पासे तो इसका पुतला जलाना है, इसकी बेइज्जती करनी है, फिर मत्था टेकने का की मतलब, क्यों मत्था टेकते हो? सारा दिन परिक्रमा पे करते हो, सारा दिन मत्था पे टेकते हो। अचेतन मन दे ये ख्याल है कि बंदा तो भगवान की तरह से, फिर इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? साल दे साल उसनूं जला क्यों रहे हो, फूक क्यों रहे हो, उसका पुतला क्यों जला रहे हो? हार गया। हारना ही शैतानियत है, जित जाना ही भगवान होना है, ये हकीकत है। जद भी कोई हार जाता है, संगी साथी नहीं लभदे हुंदे। तमिलनाडु के लोग रावण की पूजा करते हैं, केरला के वासी तमिल लोग, पार्लीमेंट दे भी आवाज़ उठी सी तमिल लोगों की तरफों, तमिल MP जिन्ने भी सन, बई ये अन्याय असी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि साल दे साल साडा एक बजुर्ग उहदा पुतला जलाया जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, ये असी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये आवाज़ पार्लीमेंट दे उठी, हिंदुस्तान की पार्लीमेंट दे, और उन्होंने बड़ी पुरजोर मंग की थी कि उत्तरी भारत अगर साल दे साल रावण की बेपती करेगा तो इसका रिएक्शन भी हो सकता है तमिलनाडु दे, केरला दे। ये उन्होंने धमकी भी दी सी, ये भी महर्ज करते हैं। हिंदुस्तान इस तरह की आवाज़ उठ पई है, भावें हज़ारां साल बाद उठी है, लेकिन उठी है।
कि बंदा तो नेक सी, ਉਹਦਾ कोई कसूर भी नहीं, और उसके आचरण इखलाक के उत्ते भी कोई आँच नहीं, उसने सीतां ते कोई जुल्म भी नहीं किया, उसकी कोई असमत नहीं लुटी। और इस गल का सबूत है कि अग्न परीक्षा दे कहते ने सीता कामयाब निकली। इतिहास लंबा चौड़ा इतिहास है, मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, जो जित जाए भगवान बन जाता है, जो हार जाए शैतान बन जाता है। जेतू दे पिछे जगत चलता है, जो जित जाए। और ये हकीकत है, ऐसा भी समा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं वेखना पिया, सिर्फ जिहड़े भी 25 सिंह सन उन्होंने भी बिदावा लिख दिता। इस दे कोल ते अन्न भी नहीं लभदा, भुख गरीबी, तन दे कपड़े भी पट गए, इस गुरु दे नाल चल के की करना है। ए लो बिदावा, तुसी साडे गुरु नहीं, असी थोड़े सिख नहीं। सुख में बहु संगी भय, दुख में संग ना कोय। जिस तो दुख मिलेगा मनुख उसका साथ छोड़ देगा, चाहे रब है तो चाहे गुरु ही क्यों नहीं। भरा दी तो गल छोड़ दो, प्यो की तो गल छोड़ दो, पुत्र की तो गल एक पासे, मित्र की तो गल एक पासे, चाहे गुरु तो परमात्मा है, वह भी साथ छोड़िया जा सकता है। इतिहास बिदावा लिख देता है। असी थोड़े सिख नहीं, तुसी साडे गुरु नहीं। सतगुरु ने भी कबूल कर लिया, ठीक है, मैं थोड़ा गुरु नहीं, तुसी मेरे सिख नहीं, ठीक है। दुख का साथ कौन दे? रहीम ने एवें नहीं कह दिता। खैर ये तो इवें विचकार जो है एक गल आ गई, तो मैं इतना समा जो है थोड़ा लै बैठा, तो मेरे जज्बे कई दफ़ा विचे रह जाते हैं, तो मैनू अफसोस भी आता, मैं जिहड़ा गल कहन लगा सी ऐन मैं थिड़क क्यों गया। फिर सोचना, अच्छा गुरु तू यही कहलाना चाहता सी, तेरी मर्जी, तेरी रहमत, तेरी बख्शिश। मैं थोड़े सामने मूल मुद्दा जो रख रहे हैं वो ये कि शरीर पंज तत्त का पुतला है। शरीर पंज ने, कर्म इंद्रे पंज ने, ज्ञान इंद्रे पंज ने, मूल विकार पंज ने। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की झोली च पाइया ने पंज बाणियां, और पंजवीं है आनंद। मंजिल है आनंद, पहुंचना है आनंद तक। आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है। इतनी मैं अर्ज करते हैं, आनंद कोई सुख नहीं, सुख के चक्कर च ना पैना। हर सुख परिवार तो मिल जाता है, पदार्थों तो मिल जाता है, धन तो मिल जाता है, और हर सुख के पिछे दुख खड़ा है। आनंद सुख दुख तो उच्ची अवस्था है, जप नाल प्राप्त होती है। तो मैं वायदा जरूर किया सी कि जप की विधि ते जप का ज्ञान जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे च है, वो मैं थोड़े सामने जो है रखना है। गुरु नूं जो मंजूर सी कल तो छोड़ दें, कल फिर थोड़े सामने इस विचार नूं दोहरावांगे। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। गुरु मिल गया, आनंद मिल गया, सुख दुख तो उच्ची अवस्था मिलती किवें? जप नाल। वास्तविक जप की है? किसी एक शब्द नूं बार बार रटी जाना, रटी जाना, रटी जाना, ये जप है। विधि ढंग और इसकी अवस्था, इसकी रूपरेखा तुच्छ बुद्धि अनुसार जो कुछ दास ने पढ़िया एक पाठी की तरह पढ़ के थानू सुना देंगा। जिन्हों का अनुभव होगा उन्होंने रस आ जाएगा, और जिहड़े स्मारक के पांधी ने उन्होंने शायद कोई सोच समझ भी जो है मिले। एक पाठी की तरह पातशाह की बाणी दे जो कुछ लिखे है पढ़ के थोड़े सामने जो है रख देंगा। अनुभव गुरु ग्रंथ साहब का, ज्ञान गुरु नानक का, विचारां सतगुरु दियाँ, पाठी आपां पढ़ के थानू जो है सरवण करा देंगे। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।